Rahim. Assalamu alaikum students. Lecture number 4 and the chapter number 2, solving a biological problem. My question is, define science. What is science? As all of you are studying this science, so all of you should know about science. And science is the systemized knowledge that is derived from observations and experiments, and then we draw some conclusions about any problem. क्या है कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, ठीक है, हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस, पहले उसको रिकग्नाइज करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं एंड देन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं. तो जैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं देन वी ड्रॉ सम conclusions and that is the result of that problem, means solution of that problem. So today we are going to discuss the biological method and the biological problems. In this chapter we will solve the biological problem, all the problems that are related to the living organisms. So firstly, the biological method. What is biological method? Any scientific method which is used to solve the biological problems is known as biological method, and it consists of many steps that biologists use to solve the biological problem. Next is the steps to solve the biological problems. There are 7 steps that are used to solve the biological problem. Number 1 is recognition of biological problem, then observation, hypothesis formulation, deduction, experimentation, summarization of result and reporting the results. So firstly we will see that what is recognition of biological problem. It is the diagram in which it is the loop to solve the biological problems. Number 1 is identify the problem. Identify the problem means we will recognize the biological problem. What is the problem? ठीक है, हमारा हमने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से पैदा हो रहा है और किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज़. हम उससे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे. इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन. क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ some observations and in this way we create some ideas. And number 3 is select the best ideas. Then we will draw some hypothesis and then draw some deductions from hypothesis. And number 4 is build and test the ideas. कि जो हमने ideas select किया है कि हम इस तरह अपनी problem को solve कर सकते हैं, हमारी problem इस वजह से हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमने चेक भी तो करना है ना. हमने जो आइडिया क्रिएट किया कि हम ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, टेस्ट करेंगे. तो जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया, so we will draw some conclusion. That is number 5, evaluate the result. After experimentation we will have some result, that is the summarization of result, that is evaluation of result. In this way we can solve the problems. Number 1 is recognition of biological problem. One by one we will discuss the steps to solve the biological problem. First is recognition. In recognition of biological problem, what is biological problem? It is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself. बच्चे क्या है, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमने उसको पहले रिकग्नाइज करना है कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है, उसकी क्या खसूसियात हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, अब वो कहते हैं कि प्रॉब्लम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो एक किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आया हो, ठीक है, बायोलॉजिस्ट के माइंड में आया हो, या किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और जो बंदा है, ठीक है, उसके दिमाग में आया और उसने वो क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट से पूछ लिया. ठीक है, सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन, कि अब हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गई, ठीक है, हमने उस प्रॉब्लम को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना वैसे भी मुशाहिदा करना, देखना, ठीक है. सो एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बियोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक न्यू वंस. क्या करते हैं? अगर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले किसी और ने कोई ऑब्जर्वेशन बनाई है, उसको वो रिकॉल करते हैं और फिर क्या कर देते हैं? नए ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं. एंड ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ 5 सेंसेस. Number 1 is vision, number 2 is hearing,
नंबर 3 इज स्मेल, देन टेस्ट एंड देन टच। बच्चे जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपकी ऐसी हो सकती है जिसके लिए आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या, उसके लिए कौन सी टाइप यूज़ कर, सेंस यूज़ करनी पड़े, हेयरिंग यूज़ करनी पड़े। कोई प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपने विजन को यूज़ करना है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज मेड विद 5 सेंसेस एंड यू कैन सी इन द डायग्राम हेयरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच. Next is the types of observation, that is the most important short question, that is differentiate between quantitative and qualitative observation. Quantitative and qualitative observation. Quantitative observation is considered more accurate. बच्चे quantitative और qualitative में फ़र्क क्या है कि quantitative बहुत accurate होती है, ज़्यादा सही होती है as compared to qualitative observation. Quantitative में क्या होता है कि हम जो हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, नंबर्स में। और जो नंबर्स में रिकॉर्ड किया गया होता है वो क्या होती है, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको हम टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं होती बल्कि वो एग्जैक्ट रहती है, ठीक है। तो क्योंकि वो एग्जैक्ट रहती है, बिकॉज दे डेट इज़ इनवेरिएबल, मेजरेबल and can record it in terms of number, that's why quantitative observation is more accurate. And example is the freezing point of water इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स यूज़ करें, डेट्स वाई दिस इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ओके। एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज वेरिएबल, क्या है कि वो उसकी क्वालिटी चेंज होती रहती है एंड कैन नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और उसको हम नंबर में अब जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बच्चे देखिए, जैसे आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ के बारे में लिया, अगर आपके फूड को ले लें, ठीक है, आपकी फूड क्वालिटी, आपने ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह बनाया, अगर ठीक है, नाश्ता आपने बनाया, आपने उसको खाया नहीं बल्कि वो ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है। अब वो टाइम, जैसे ही टाइम गुजरेगा गुजरेगा गुजरेगा, तो क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो क्वालिटी जो होती है वो किसी भी चीज़ की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी, जो नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता। इसलिए क्वालिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज हो रहा है, और क्वांटिटेटिव इनवेरिएबल है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या है, कोल्डर है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम नंबर्स यूज नहीं कर रहे, दैट्स वाई दिस इज qualitative observation. Next, third step is formulation of hypothesis. Biologist organizes observations into data form and construct a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study. बच्चे क्या है कि जो हमने observation की है उसके बारे में हम क्या करते हैं, कोई अपने से उस ऑब्जर्वेशन से एक डाटा लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस के। और स्टेटमेंट जो है ना वो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसको जब हम फर्दर टेस्टिंग में लेके जाते हैं ना, तो फिर हम उस ऑब्जर्वेशन को सही भी साबित कर सकते हैं अगर वो टेस्ट उसके हक में हो, और वो फॉल्स भी हो सकती है। सो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव विच कैन बी चेंज्ड, ओके, is called a hypothesis, and it may also be defined as a proposition that might be true. And there are some characteristics of hypothesis, that it should be a general statement, it should be a tentative idea, it should agree with available observations, it should be kept as simple as possible, and it should be testable and potentially falsifiable. जो ऐसी hypothesis होनी चाहिए, एक सादा सी statement हो, टेंटेटिव आइडिया हो विच कैन बी चेंज, टेंटेटिव आइडिया जो चेंज हो सके, ठीक है। और इट शुड एग्री, कि जो आपके पास पहले से ऑब्जर्वेशन है उसके साथ वो एग्री करे, सिंपल हो, टेस्टेबल जिसको आप टेस्ट कर सके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड देन फॉल्सिफिएबल जिसको आप गलत भी साबित कर सके, ठीक है। तो जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो दो तरह, वो ट्रू भी हो सकती है और वो आपकी फॉल्स भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द डिडक्शन। इन डिडक्शन biologist draws डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। बच्चे जो हमने प्रीवियस, ये जो आपकी स्टेप्स हैं ये वन बाय वन सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व की, देन ऑब्जर्वेशन, वी मेड ऑब्जर्वेशन,
then formulation of hypothesis, and then deduction. Now we will draw the deduction from hypothesis, and deductions are the logical consequences of hypothesis, and deduction will always gives us a expected result. बच्चे हमने जो hypothesis बनाई है ना कि ये हो सकता है, ठीक है, या ये होगा या ये होगा, अपनी प्रॉब्लम कोई भी आपकी है ना तो उसके बारे में आप जो राय देते हैं ना तो वो कहते हैं कि या ऐसा इसके थ्रू हो सकता है या इसके थ्रू, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक डिडक्शन बना लेते हैं कि हम कहते हैं अगर ये एक हाइपोथेसिस जो बनाई है उसको लेके चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये वाली जो हाइपोथेसिस है इससे हम जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, कि ये ऐसा रिजल्ट होगा, तो उसको हम कहते हैं डेट इज़ डिडक्शन, और वो हमारे पास ऑथेंटिक नहीं होता, ठीक है। ऑथेंटिक वो तब होगा जब हम उसको टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन, ठीक है। इफ़ और देन का वर्ड जो है वो हम डिडक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम मलेरिया की एग्जांपल देखें, ठीक है, उसमें हम मलेरिया की ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। हमने मलेरिया एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, एक एरिया था मार्शी एरिया, वहाँ पे प्रॉब्लम काज हो रही थी मलेरिया की, ठीक है, उनमें वो जो लोग थे उनके अंदर क्या था, मलेरिया काज हो रहा था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन की, हमने वहाँ पे देखा कि उन पेशेंट्स की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है, एंड सेकेंड वन इज़ मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और वो मार्शी एरिया जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो एरिया मार्शी था, उसके दरमियान कोई एक रिलेशन है। नंबर 3 इज़ ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया, कि जो वहाँ से वो मार्शी एरिया से जो वाटर की ड्रिंकेज जो है उसकी वजह से मलेरिया काज नहीं हो रहा। ये ऑब्जर्वेशंस थी। फिर हमने उसके बारे में हाइपोथेसिस बना ली, डेट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब क्योंकि हमने हाइपोथेसिस जो है वो खुद से बनाई है, ठीक है, तो ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या करें हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देखिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इफ़, अगर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है तो फिर मलेरिया के हर पेशेंट के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। सो दिस इज द डिडक्शन, and in deduction we use the words if and then. Next topic step is the experiments. In experimentations we perform experiments to check if hypothesis is true or false, or we do experiments for rigorous testing. बच्चे क्या है कि जो हमने hypothesis बनाई है, ठीक है, हमने चेक करना है कि वो hypothesis जो है वो true है या false है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स क्या होती हैं, ये एक टेस्टिंग होती है। एंड एक्सपेक्टेड hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test is validity, कि हमने क्या कहते हैं, जो प्रिडिक्शन है hypothesis की उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि वो वैलिड है, ठीक है या नहीं है, ठीक है। एंड विच हाइपोथेसिस इज ट्रू, अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है तो हमने उसमें से देखना है कि कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है और कौन सी गलत है। एंड दिस एक्सपेरिमेंटेशन इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। Today's diary is lunch topic biological method plus biological problem, hypothesis, deductions and experiments. So today we have study the steps to solve biological problem. First step is the recognition of biological problem, in which we recognize the problem, that what is the problem, and the problem, biological problem, is any question related to living organism that is either asked by someone or it comes in biologist mind by himself. And number 2 is observations. Observations are made with 5 senses: vision, hearing, smell, taste and touch. And there are two types of observation: quantitative and qualitative. In quantitative is more accurate because it is invariable, measurable and recorded in terms of number, while qualitative is variable and cannot measured in terms of number. And example of quantitative is freezing point of water is 0 degree and boiling point is 100 degree, while qualitative is freezing point of water is colder than boiling point.
Next is the formulation of hypothesis. We make a statement about the observation, and this tentative explanation of observation is hypothesis, and it also defined as the proposition that might be true. And there are some characteristics of hypothesis that is very important. Short question: it should be general statement, tentative idea, available, should agree with available observation, kept as simple as possible, and should be testable and potentially falsifiable. Next is the deductions. Deductions are always drawn from hypothesis, and these are logical consequences. And then we draw some expected results. Basically deductions are the expected result कि हमारा result जो है वो ये हो सकता है. Next is the experiments. In experimentations are performed to check if hypothesis is true or false, and it is the rigorous testing, and we check that which hypothesis is true. Thank you.